Alright, so last 15 days are left for the examination and अभी तक जो टॉपिक ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट का गले की हड्डी बना हुआ है वो है करंट अफेयर्स या फिर हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस। और हो भी क्यों ना, बिकॉज 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन। और अभी तक सेम सवाल है, क्या करें, कितना करें, कहां से करें, कब तक करें, कब तक क्या करें। All of these questions are still there with respect to the general awareness topic. So today in this session, we are going to discuss some questions related to general awareness, and all the queries related to general awareness will be solved. And at the end of the video, I'm going to give you a 15 days plan that you must follow to crack the general awareness section of this examination, right? तो आज हम चार चीजों पे बात करेंगे। पहला, जो आपके बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच डेट the current affair has to be covered, right? दूसरा, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें with respect to the general awareness part. तीसरा, what should be the examination approach. And चौथा, last but not the least, I will be giving you a 15 days plan that you can follow to ace this section of RBI grade B exam. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं without any delay. And very first question, till which date current affairs is required? कब तक का current affairs करना है? So if you are a NABARD aspirant, let me tell you this, if you are a NABARD aspirant, you need to cover the current affairs till 25th of August. While if you are going for RBI grade B examination phase 1, you need to cover the current affairs till 1st of September 2024. Yes, my dear friends, एक हफ्ते पहले का भी क्वेश्चन आता है, so you need to cover. Last year अगर आपको याद हो तो आई बिलीव 9 जुलाई को पेपर था, 8 या 9 जुलाई को पेपर, और 1 जुलाई दैट इज सीए डे का क्वेश्चन आया था। ठीक है, so this year also they can ask question 1 week before from the news, 1 week before the examination. तो 1 सितंबर तक का आपको करके जाना है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, मॉक एनालिसिस। देखो, मॉक एनालिसिस में इन द जीएस सेक्शन स्पेसिफिकली यू नीड टू चेक फॉर टू थिंग्स। नंबर 1, you need to check the accuracy, and number 2, you need to review the incorrect answer. आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको ये देखना है कि जीए में आपकी एक्यूरेसी क्या थी, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी है, एंड अगर कोई सिली मिस्टेक करी है तो व्हाई दैट सिली मिस्टेक हैपेंड एंड हाउ यू कैन एलिमिनेट दैट सिली मिस्टेक। नंबर 1। नंबर 2, यू नीड टू रिव्यू द इनकरेक्ट आंसर। जो भी आंसर आपके इनकरेक्ट हुए हैं वो क्यों हुए, ठीक है। एंड आफ्टर रिव्यूइंग द इनकरेक्ट आंसर यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट इन विच एरिया you are lacking. Now what do I mean by area here? So here let me give you a 20-20-20-20 approach, 4 times 20 approach। एक है जो कि 23 के एग्जामिनेशन में मैंने ऑब्जर्व करी थी, जो कि आरबीआई के जीए वाले सेक्शन में होता है। 20 questions will be from ESI current affairs, from PIB and government schemes, right? 20 questions will be from finance current affairs, right? RBI 247, RBI annual report and other finance related current affairs. 20 questions will be from general current affairs, awards, you know, sports हो गया, awards हो गए, appointments हो गए, इनमें से आएंगे, and that can be covered from the spotlight. And the rest 20 questions are random, बिल्कुल random questions, कहीं से भी कुछ भी। Okay, so while reviewing the incorrect answer, you need to understand, you need to identify that in which area you are lacking. ये जो random questions है 20, इनको तो छोड़ दो। Right now you are left with 3 areas: ESI current affairs, that is PIB and schemes, number 2 finance current affairs, and number 3 general current affairs. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा that in which area you are lacking, ठीक है, and then you can work upon it. So this is how you can do mock analysis for general awareness part. ठीक है जी, I hope it is clear. And now this approach याद रखना, क्योंकि RBI जो है अब वो FM को, फाइनेंस और ESI को फेज 1 में भी लेके आ चुका है 2023 में। तो आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड कि इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनेंस के और ईएसआई करंट अफेयर्स के और स्कीम्स के क्वेश्चंस जीए में फेज 1 में पूछे जाएंगे। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज व्हाट शुड बी द एग्जाम अप्रोच। सो एग्जाम अप्रोच में जो ये बातें यहाँ पे लिखी हैं, उससे पहले मैं आपको 2 अप्रोचेस बताना चाहूंगा जो दैट यू मस्ट बी फॉलोइंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सी 80 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, राइट? And all the questions are lengthy, almost all the questions out of 80, around 60-65 questions will be lengthy as per the last year trend. Okay, now in those lengthy questions I have identified, because I also went for the examination last year, so I identified that you need to read only the first line, पहली line पढ़ ली, and then you have to quickly jump to the last line where they are asking the actual question.
So this is how you can skip the entire passage, the entire paragraph which has been given by the examiner just to waste your time. So you need to work smartly here. आपको पहले एक या दो पैराग्राफ लाइन सेंटेंसेस में ही समझ में आ जाएगा that which what is the context of this particular question. कीवर्ड आपको दिख जाएगा पहले दो लाइन में, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है. एंड देन इन द लास्ट लाइन दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन. तो जो बीच की पैसेज है जो 8-10 लाइन से, यू गाइस कैन इजीली स्किप. ये हो गया पहला अप्रोच. दूसरा अप्रोच है ऑप्शंस के थ्रू. क्वेश्चन को देखो ही मत, ऑप्शंस को देखो डायरेक्ट, बिकॉज आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं. And wherever you look at any familiar thing, your brain will quickly recall it. ऑप्शन में मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का आउटले ले लेते हैं, तो 64180 करोड़ इज द आउटले ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, राइट, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, राइट. तो इफ यू विल सी दिस नंबर, इफ यू सी दिस नंबर, मैंने नंबर पहले देखा हुआ है, ठीक है, और अब मैं जब नंबर कहीं पे भी देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है. और फिर मैं ऊपर देखूंगा, जैसे ही मुझे दिखेगा कि yes, this question is related to Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, Abhim, right? Then of course I will quickly mark the answer. यही मेरा आंसर होने वाला है. So this is how these are the two approaches to save your time. इस तरीके से आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो. इसके अलावा in the first pass जब आप पहले go through कर रहे हो 80 questions को, so you need to solve all the easy to moderate question. Now you will ask, भाई मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है. भाई आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इजी है या मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है. सही है. तो फर्स्ट पास में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस निपटा लिए. उसके बाद सेकंड पास में आए हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है. डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी याद रखेंगे आपको वो दो अप्रोचेस फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई थी टू सेव योर टाइम, ठीक है. जनरली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी लेंथी ही होंगे बट वो इजी होंगे, ठीक है. अब वहां पे आपको देखो, अब इजी क्वेश्चंस को भी आप डिफिकल्ट बना सकते हो इफ यू आर रीडिंग द एंटायर पैसेज. पूरा पढ़ोगे तो वो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट बन जाएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन को अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट दे दिया तो हो गया आपका काम. फिर तो आप कभी 80 क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाओगे, राइट. एंड थर्ड पास में यू नीड टू डू द स्मार्ट गेस वर्क. नाउ स्मार्ट गेसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मार्ट गेसिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास इफ यू हैव 5 ऑप्शंस एंड यू आर कंफ्यूज आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%, ठीक है. देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है. आप स्मार्ट गेस लगाओ और उसमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. और स्मार्ट गेस कैसे करते हैं, अनुज सर ने इसमें बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो. अगर मान लो कि आपको 3 या 4 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब है आपको नहीं आता, राइट. इफ यू हैव अ कंफ्यूजन इन 3 to 4 ऑप्शंस, देन दैट इज नॉट कंफ्यूजन, इट मींस दैट यू डू नॉट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. उसको छोड़ दे, उसको मत करना अटेम्प्ट, राइट. ओनली द स्मार्ट गेसेस, ठीक है. स्मार्ट गेसेस लॉजिकली आपको लगाने हैं और तभी आपका काम बनेगा, ठीक है. दिस वाज द एग्जाम अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो फॉर जीए इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स कम टू द 15-day strategy. Before telling you the 15-day strategy, before telling you how you can cover this, let me tell you spotlight you need to cover for June, July and August, the last 3 months. PIB 247 you need to cover for the last 4 months, May, June, July and August, and same goes for RBI 247, May, June, July and August. So these are the months that you need to cover for these 3 magazines. So today is 23rd. We are, let's say you are going to start from tomorrow. You need to divide your time, morning and evening में divide कर दो. And yes, this is a quite strict timetable, and you need to give at least 1 to 1.5 hours in the morning and in the evening each. ये आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा जब आप सुबह 1 घंटा से 1.5 घंटा या और शाम को 1 से 1.5 घंटा देने के लिए तैयार हो. नहीं तैयार हो तो छोड़ दो भाई, ठीक है. दैट इज अप टू यू. So starting from 24th August, in the morning Spotlight June, in the evening PIB May. 25th August same Spotlight June, PIB May. और 2 दिन दिए मैंने आपको एक मैगजीन के लिए. आई बिलीव दैट इज मोर देन इनफ, राइट. एक मैगजीन को 3 से 4 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत इस समय नहीं है. एंड यू हैव टू क्विकली रीड इट, बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव रेड इट once or twice till now. So during the revision you need to quickly read it, ठीक है जी. Similarly 26th and 27th को Spotlight July in the morning, RBI 247 May in the evening. 28th and 29th August PIB June in the morning, RBI June in the evening. 30th and 31st August PIB July in the morning and RBI July in the evening. 1st and 2nd September Spotlight August, PIB August in the evening. 3rd September RBI August,
एंड इवनिंग में टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स. व्हाट इज टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स? गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपकी कोई रह गई है तो, राइट, इंडाइसिस, रिपोर्ट्स एंड एनुअल सर्विस, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू कवर. ठीक है. सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ को आरबीआई अगस्त टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स एंड द रेस्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ को आपको टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स करना है सुबह से लेकर शाम तक. ठीक है. अगर आप इतना करंट अफेयर्स भी करके जाओगे सो यू विल गेट अ डिसेंट स्कोर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एनी डाउट. ठीक है. अब आप ये कहोगे इतना सारा हम कैसे कर पाएंगे भाई? तो करना तो पड़ेगा ही ना, उसमें क्या है, करना तो पड़ेगा ही. या तो छोड़ दो, एग्जामिनेशन मत दो. अब ये तो एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन यू डू इट, मैंने आपको बता दिया. ठीक है. लोगों के दिमाग में जनरली रहता है कि यार 4 महीने 8 महीने और 3 महीने 11 मैगजीन्स करनी है, कैसे करेंगे? तो ऐसे करोगे ना भाई, आपको दिया ना टाइम टेबल, और 2 घंटे सुबह से ज्यादा और 2 घंटे शाम से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें भी करनी है. बाकी चीजें लाइक मॉक टेस्ट भी देना है, अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कुछ रह गया तो वो भी देना. ठीक है. Alright guys, so that's it for this session. I hope all the doubts with respect to GA are cleared. इसके अलावा मैं और कोई डिटेल स्ट्रैटेजी में मैं अब जाना नहीं चाहता, बिकॉज अब एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर नाउ. सो आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर व्हाटएवर इज योर डिटेल स्ट्रैटेजी. ये मैंने छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको दी है ताकि आपकी जो ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर ये इम्बाइब हो सके. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.